The Adibane Kebang Youth Wing AVK YW, a frontal wing of the Adibane Kebang AVK, the traditional apex affiliate and Supreme Council of Adi, led by Sri Joluk Minung, President AVK Youth Wing, made the advisor to Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Tai Tagak today on 30th June 2021, and submitted a 3-point memorandum to the Honorable Chief Minister through him, while also apprising him of several pressing issues plaguing the Adi belt. The 3 points of the memorandum has been given below and enclosed for ready reference. The life insurance for ASA workers who are being deployed for COVID-19 duties. Second number, installation of ILS, instrument landing system at Pasigat Airport to facilitate landing of aircraft in all weathers and also during the night. Creation of post of traffic warden for Pasigat on the lines of Itanagar traffic wardens. The AVK Youth Wing further appeal to the Honorable Chief Minister through the advisor to take the following issues into cognizance. Number 1, collapse of Sangam Bridge at the junction of Pangin Boleng Alo. The AVK Youth Wing appealed for the government to give full assistance to the Border Route Organization BRO and the District Administration Siang to complete the restoration rebuilding of the bridge within 1 month, as it is an important lifeline to the upper Adi belts. The Youth Wing also apprised the advisor to the Honorable Chief Minister of the slow progress of the ongoing works on the new RCC bridge at Sangam, for which the abandoned work has still not been completed in spite of 3 years of the signing of the agreement, and requested him to direct the concerned authorities for its early completion. AVK Youth Wing will further appeal to the public of Pangin and Boleng circles to physically and voluntarily come forward and assist the restoration agency VRO and the district administration Siang for the early restoration of Sangam Bridge. Number 2, 50-bedded de-addiction cum rehabilitation center at Pasigat. The AVK Youth Wing apprised the Honorable Chief Minister of the current situation of the existing 10-bedded rehab center at Pasigat, in which 14 patients are currently being accommodated with a waiting list of 78 patients. The AVK Youth Wing requested for approval and sanctioning of a 50-bedded de-addiction camp rehabilitation center at Pasigat to support the ongoing fight of the government against the drug maniac. Number 3, upgradation of the under trial prison UTP at Pasigat. The current under trial prison UTP, which was constructed approximately 30 years ago with a capacity to house 30 under trial prisoners, currently houses a huge number of under trial prisoner UTP way over its capacity of 30 UTPs. The AVK Youth Wing appeal for its upgradation, as the same would also facilitate effective crime control measures, especially during the ongoing fight against the drug maniac, when crime control measures, especially when hundreds of drugs
peddlers and drugs addicts are being arrested. Number 4, Lower Siang issue. The AVK Uding also appraised the Honorable Chief Minister of the delay in the solving of the issue related to the boundary of East Siang and Lower Siang and requested him to intervene in the matter for its early solution. AVK Uding appealed for the continuation of Korang Circle under East Siang and also appealed for non-inclusion of Deputy Commissioner who are local tribals of East Siang or Lower Siang in any committees or decision-making bodies on the boundary issue of Lower Siang to prevent any biasness due to local pressure of or interference. AVK Uding also cleared its stand that it would not allow the inclusion of any Adi land in Lower Siang without the consent of AVK. Number 5, the block point at Rotung. The AVK Uding also appealed for early restoration of the collapsed road at Rotung on Pasigat Pangin Highway in a war footing as the same is the lifeline of 5 districts. हम अभी सीएम को इंटरवेंट करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मीटिंग एक्चुअली हम लोग का मीटिंग लोअर सियांग इशू को और ईस्ट सियांग का ये मैटर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को 15 मार्च 2021 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री तागेहारी उनका चेयरमैन में हम लोग पासीघाट में मीटिंग कंडक्ट किया था। उसमें लोअर सियांग का डीसी भी आए, हमारा पासीघाट का डीसी भी बैठा है और हम लोग जितना CBOs और वहाँ का पब्लिक ये सब बैठा है। तो उसमें डेडलाइन दिया था कि 31 मार्च को ये सोल्यूशन को कंप्लीट करना है, ये प्रॉब्लम को, और ये प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है ये बोल रहा था। तो अभी तक तो वो 31 मार्च तो चला गया, तो अभी ये मार्च अप्रैल मई ये जून हो गया, तो आज तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। तो अभी तक गवर्नमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं वो उसका भी हम लोग को आता पता नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा अपील ये है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसको इंटरवेन करके जितना हो सके ये इसको समाप्त कर देना है, क्योंकि ये मामला को लेके कितना दिन बैठेगा। तो अभी हमारा कोरांग सर्कल का इतना प्रॉब्लम हो रहा है अपना जुरिडिक्शन को लेके, तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इंटरवेन करके जल्द से जल्द इसको सुलझाए। में जो संगम ब्रिज तो कल कोलैप्स हो गया है, तो इसका मामला में हम लोग ये तो BRO को हम लोग का एक अपील है कि जितना हो सके जल्दी जो वैली ब्रिज उसको अभी विदिन 1 मंथ अंदर में हम लोग बना देना चाहिए। और उसका साथ में इसमें एक ये है BRO ने जब 2000 को जब एक तो सियांग का बहुत ये फ्लड आया था उसमें वो ब्रिज को लेके गया था, तो उस समय में BRO एक नया RCC ब्रिज बनाने के लिए उसमें एक कंपनी को देख के रखा हुआ है। उसका एग्रीमेंट सब कुछ हो गया, अभी 3 इयर्स हो गया वो एग्रीमेंट होने के बाद भी, बट देन आज तक उसका फाउंडेशन ये सब वो सब करने में उसका इतना टाइम ले रहा है, इतना डिले हो रहा है, इतना स्लो स्टेज में हो रहा है। तो ये मैटर में भी हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि कंसर्न अथॉरिटीज़ को वो डायरेक्टिव देना है कि जल्दी जल्दी मतलब उसको RCC बिल्डिंग को RCC ब्रिज को बनाना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में काल का जैसा वो वैली ब्रिज ना गिरे ना इसमें, क्योंकि ये अभी 2 बार हो चुका है ये। तो कंटिन्यूशन इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेगा रिगार्डिंग संगम ब्रिज को हम लोग ब्रो को 1 मंथ में कंप्लीट करो बोलते हुए हम लोग ये भी ऐड करना चाहता है कि आदि बान के बांग जो AVK जो जितना भी लोकल प्रॉब्लम होगा उसके बाद मैन पावर का भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग वॉलंटियर करेगा और हम लोग सोशल सर्विस भी करेगा। तो इसको ये में वॉलंटियर ये को लेते हुए हम लोग ये भी एक अपील देना चाहता है। आप लोग को पता होगा कि कल का जो कोलैप्स होते समय में 3 आदमी का लाइफ जो गाड़ी में गुजर गया है, तो उनका भी
गवर्नमेंट को हम लोग ये अपील कर रहे हैं आप लोग का थ्रो से भी कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो लोग को भी एक इमीडिएट रिलीफ जल्द से जल्द गवर्नमेंट देना चाहिए। जो हम लोग ट्रैफिक वार्डन्स के लिए पासीघाट के लिए बोल रहे हैं, इन द लाइन्स ऑफ ईटानगर ट्रैफिक वार्डन इसलिए बोल रहा है कि अरुणाचल में ओनली 2 म्यूनिसिपल एरियाज है जहाँ ये है ईटानगर एंड पासीघाट। तो हमारा ईटानगर में कम से कम इतने भी ये जो आपका मास्टर रोल में होने से भी कम से कम मैनेज करने वाला तो है। हमारा पासीघाट में ट्रैफिक का प्रॉब्लम को विथ ग्रोइंग पॉपुलेशन ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत हेफाजटली और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग अभी इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए आप एटलीस्ट अगर ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट का पास ऑस्टेरिटी मेजर्स है, तो आप एटलीस्ट ट्रैफिक वार्डन का जो यहाँ का सिस्टम है मास्टर रोल वाला ये भी हमें दे दीजिए फॉर द टाइम बिंग, ताकि हम लोग वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है टाइम बिंग में उसको वो लोग हैंडल करें। इसके लिए हम लोग ये लड़का को उसमें जैसे आप 5-6 सब यूज करेगा वो लड़का को तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसका बारे में आप सोचा क्या? वो तो गवर्नमेंट का पॉलिसी होगा, आपका भाई बहन होगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी। नहीं, वो इशू जो है वो तो गवर्नमेंट का पॉलिसी होगा। अगर वो लोग सर्विस अच्छा देता है तो हम लोग का तरफ से तो हम लोग सिंपैथी है ट्रैफिक वार्डन का जो ईटानगर वाला केस में भी ऐसे CBO हम लोग सिंपैथी है वो लोग का साथ भी। और जब ड्यूटी अच्छा कर रहा है और सर्विस अच्छा दे रहा है तो गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो लोग को कुछ ना कुछ जगह में एडजॉब करना। वो गवर्नमेंट का पॉलिसी मेथड में हम लोग अभी कमेंट नहीं करेंगे। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि ये अभी बने केवंग यूथ विंग्स की ओर से आप लोग ने 2 मेमोरेंडम किया हुआ है फिलहाल अभी तक। तो सर उसका कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमारा बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑन 27 ये को मई को फर्स्ट मेमोरेंडम दिया था CM साहब को। उसमें हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट में दिया था। नंबर 1, आपका जितना भी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है आसास, नॉर्मली अभी हमारा स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में जो पेंडेमिक में काम कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर लोग को, वो लोग को ये में गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम होने से वो लोग दे आर इंश्योर्ड जो हेल्थ केयर वर्कर है। लेकिन हमारा अपना जगह को भी हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग का लोकल एरियाज़ में जो देख रहे हैं मैक्सिमम हमारा तो रूरल एरियाज़ है। रूरल एरियाज़ में जितना भी नर्सिंग ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, हेल्थ केयर वर्कर है, दे आर इंश्योर्ड। लेकिन जो मेन ग्रास रूट में काम कर रहा है, जो हेल्थ केयर वर्कर लोग को असिस्ट कर रहा है, वो लोग इंश्योर्ड नहीं है। प्लस वो लोग इतना कम वो लोग का मंथली जो वो लोग को ये मिल रहा है उसमें रिन्यूमरेशन में वो लोग बहुत कम रिन्यूमरेशन में इतना काम कर रहा है। तो हम लोग गवर्नमेंट से ये डिमांड किया है कि आप रिन्यूमरेशन अगर नहीं बढ़ा सकता है तो एटलीस्ट ये जो इंश्योरेंस स्कीम है उसका अंदर में आप वो अम्ब्रेला में आप आसास को भी ओनली फॉर द पेंडेमिक पीरियड होने से भी ला दीजिए, ताकि कोई कल को आसास जो पेंडेमिक में काम करके कोविड रिलेटेड डेथ हो या कुछ अदरवाइज दूसरा केसेस होने से भी वो लोग को एटलीस्ट इंश्योर हो के उनका फैमिली को ये हो। नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोग पासीघाट का जैसे हमारा उसमें आप लोग भी न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो कमर्शियल फ्लाइट है सिविलियन फ्लाइट से वो भी स्टार्ट हो गया बोल के। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जब वहाँ इंक्वायर किया है तो जब आपका वेदर अच्छा नहीं है, जैसे अभी रेनी सीजन्स में आपका क्लाउडी समय में या नाइट को, ये हमारा उधर में सिविलियन फ्लाइट जो नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पाने का वजह से आपका जो रेगुलर कस्टमर जो बनना था उनका भी फ्लाइट कैंसिल हो के जो फ्लाइट सर्विस का उसमें ट्रस्ट फैक्टर जो कम हो गया। तो इसका प्रॉब्लम को हम लोग ढूंढना है तो एक आपको जो ये में एक एयरपोर्ट में आप बैड वेदर कंडीशन में, ख़राब वेदर कंडीशन में उसको असिस्ट करने वाला को इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बोलता है। तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होने का वजह से हमारा पासीघाट का एयरपोर्ट में आप सिविलियन या कमर्शियल फ्लाइट जो वो ड्यूरिंग बैड वेदर और नाइट टाइम में नहीं आ पाता है। तो हमने सेकेंड पॉइंट में CM साहब को यही लिखा है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको भी बोलना है बोल दीजिए, आपका तरफ से काइंडली एडवाइस कर दीजिए कि ये चीज़ जो जल्द से जल्द पासीघाट में लगवा दीजिए। इंस्टॉलेशन जल्दी होना है। नंबर 3, हम लोग
ये मैं अभी जो नंबर 3 पर्स वाला मेमोरेंडम में नंबर 3 में ये जो आपका साथी जो ट्रैफिक वार्डन का वाला पूछा, ये 3 पॉइंट है पर्स मेमोरेंडम। उसमें उसके बाद हम लोग आज सेकेंड मेमोरेंडम जमा किया है। दिस इज़ प्योरली रिलेटेड टू ड्रग्स। सेकेंड वाला जो अभी आप लोग भी देख रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ये से भी पॉलिसी भी है कि हमारा स्टेट जो ड्रग्स फ्री स्टेट होना है ऑल ओवर ये में। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल CBO हम लोग अपना लेवल से गवर्नमेंट को अरुणाचल प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने में क्या मदद कर सकता है, ये हम लोग इसको लेके मीटिंग किया था। मीटिंग करके हम लोगों ने आदिबाने केबांग का कुछ मेंबर को टास्क फोर्स क्रिएट करके, मैं वो टास्क फोर्स का चेयरमैन हूँ एंटी ड्रग्स का, जो आदिबाने केबांग यूथ विंग का। तो ये रिलेटेड में हम लोग जब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम किया है ड्रग्स का मैटर में, तो प्रैक्टिकली जब काम किया है तो हम लोग को 2 प्रॉब्लम बेसिकली मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है। नंबर 1 जो है डी एडिक्शन और रिहेब सेंटर का। आपका हमारा एट प्रेजेंट पासीघाट में डी एडिक्शन का रिहेब सेंटर जो ओनली 10 बेडेड का है, जबकि हमारा उधर में एडिक्टेड टू मोर देन थाउजेंड्स नंबर्स में बहुत लोग, ये जो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन जो, और जो वॉलंटरीली हमको ट्रीटमेंट दीजिए बोल के एडिक्टेड वाला पेशेंट जो आ रहा है, वो भी हमारा एक डी एडिक्शन सेंटर में हमने रजिस्टर को उस दिन चेक किया था। उसमें ऑलरेडी 10 बेडेड में 14 मेंबर्स है और रजिस्टर में एंट्री किया वाला भी वेटिंग लिस्ट में 78 नंबर्स है। इसलिए हमने ये अलार्मिंग सिचुएशन को देखते हुए हमने आज CM साहब को ड्रग्स रिलेटेड मैटर में उनको यही बोला है कि आप एटलीस्ट अभी के लिए 50 बेडेड आप डी एडिक्शन कम रिहेब सेंटर आपका तरफ से आप देख दीजिए बोल के। नंबर 2, इसमें जब हम लोग ये में ऑन ग्राउंड काम किया विथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ईसियांग का, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा इधर में एक तो है NDPS एक जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरा पासीघाट स्पेशली पासीघाट रिलेटेड में हमारा अंडर ट्रायल प्रिजन जो UTP जो पासीघाट का, इट वाज कंस्ट्रक्टेड वे बैक 30-40 ईयर्स पे, तो उसमें कैपेसिटी भी कम है। हमारा अभी ड्रग्स का अगेंस्ट में आप लोग भी देखता है हर जगह गवर्नमेंट का तरफ से लड़ाई हो रहा है। तो इसमें हम लोग जब प्रैक्टिकली वहाँ काम करके जो पेडलर्स है, उसके बाद एडिक्ट टू के वो लोग को अरेस्ट करके रखने के लिए होने से अभी वो UTP में बिल्कुल जगह नहीं। UTP में जगह नहीं होने का वजह से जो रिपीटेड ओफेंडर्स है, चलो एडिक्ट लोग को तो हम लोग ऐसे पेशेंट हम लोग देखता है, लेकिन जो पेडलिंग करता है और रिपीटेड ओफेंडर्स है, वो लोग को भी प्रोविज़न नहीं होने का वजह से अवेलेबल सेक्शन में बुक कर रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो, उसका वजह से अभी लॉ का भी मजाक बन रहा है कि आप आज पेडलिंग करेगा आपको पकड़ेगा, लेकिन आपको अवेलेबल सेक्शन में डालेगा, कल को बेल लेके फिर वही काम शुरू करेगा। इसलिए ये रिलेटेड में हम लोग 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करके, एक तो है डी एडिक्शन सेंटर एंड देन आपका UTP को अपग्रेड करना है, तब जाके हम लोग ऑन ग्राउंड जो खुद से वॉलंटरीली आके हमको ट्रीट करने वाला को हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ट्रीटमेंट देगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन को सोशली ये किया वाला चीज़ का अगेंस्ट में अगर ड्रग्स पेडलिंग करता है, उसको हम लोग एज पर लॉ भी बुक करने का हम लोग को जगह मिल जाएगी। ये पॉइंट। थैंक यू।